सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना जसप्रीत सिंह अटॉर्नी एट लॉ ਤੇ अपना हफ्तावारी प्रोग्राम है इमीग्रेशन अपडेट्स। तो ये असी हर वीक ही ਤੁਹਾਨੂੰ जिथे इमीग्रेशन दी अपडेट्स ਦਿੰਨੇ ਆ इस हफ्ते ਦੇ ਨਾਲ थोड़े सवालों के जवाब भी दिंने आ। तो इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि इस हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ इमीग्रेशन ਦੀਆਂ ਕੀ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ने। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ इंपॉर्टेंट अपडेट आ ਉਹ ਹੈਗੀ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ कि US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ने एक केस ਦੇ ਵਿੱਚ एक डिसीजन दिता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस का नाम हैगा निज शावेज वर्सिस गारलैंड। तो ये कोर्ट ने कहा कि जो किसी को रिमूवल प्रोसीडिंग के पाया जाता NTA इशू किया जाता वो NTA इनवैलिड होएगा जिन्नी देर तक वो जोड़ा डेट तो टाइम ऑफ द हियरिंग स्पैसीफाई नहीं की जाती। सो द नोटिस टू अपीयर NTA इज़ इनवैलिड इफ इट डज नॉट स्पैसीफाई द डेट एंड टाइम ऑफ द हियरिंग। इस तो पहला भी US सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सीगा 2018 का परेरा वर्सिस सैशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NTA ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਅਪੀਅਰ NTA। ਉਹ ਜਿਹੜਾ NTA ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੈਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੈਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੈਲਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਫੇਅਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NTA ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ NTA ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ NTA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਡੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ NTA ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ NTA ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਡੇਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਆ, ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਲਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੱਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
उन्होंने कहा कि इमीग्रेंट्स हैव डन सो मच फॉर अमेरिका डूरिंग दिस पेंडेमिक एंड थ्रू आउट आवर हिस्टरी द कंट्री सपोर्ट्स इमीग्रेशन रिफॉर्म एंड वी शुड एक्ट। उन्होंने कहा भी इमीग्रेंट्स ने इस पेंडेमिक दे विच बड़ी मदद की है, उन्होंने इमीग्रेशन जिहड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि सारी हिस्टरी साडी शो करती है भी इमीग्रेंट्स का बड़ा वड्डा इत्थे योगदान। तो उहदे नाल उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नीड्स टू पास legislation this year to finally secure protection for dreamers, the young people who have only known America as their home, and permanent protections for immigrants who are here on temporary protected status, who came from the countries beset by man-made and natural-made violence and disaster, as well as pathway to citizenship for farm workers who put food on our tables। बेसिकली वो कह रहे भी ਜਿਹੜੇ दो बिल हाउस तो सैनेट ਵਿੱਚ गए ਆ जिन्हां संबंध एक तो 18 साल तो घੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆ, एक फार्म वर्कर ते आ भी ये ਜਿਹੜੇ बिल ने ये जल्दी पास होने चाहिए आ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ बच्चे ने उन्होंने ਇੱਥੇ ਰਹੇ ने उन्होंने किसी होर कंट्री का पता नहीं, तो ਜਿਹੜੇ फार्म वर्कर ने वो साडे टेबल ते फूड रखते हैं, इस करके बड़े इंपॉर्टेंट ने। तो ਜਿਹੜੇ TPS स्टैटस ने उन्होंने बड़े जुल्म होए ने उन्होंने मुल्कों च तां इत्थे आए ने, इस करके इन्हों तुसीं जल्दी बिल पास करके पक्के करो। सो बड़ी अच्छी गल है कि अमेरिका के प्रेजिडेंट ने यह गल जिहड़ी हैगी US कांग्रेस नूं पुश कीती, तो शो करदा भी सरकार जिहड़ी आ वो किन्नी ज़्यादा जिहड़ी इस इशू के उपर सिंसीयर आ, तो वह चाहती आ भी ये जिहड़ा बिल है पास होवे, इत्थे इमीग्रेशन रिफॉर्म होवे ते जिन्नी जल्दी होवे, तो इस करके ये सरकार की कोशिश है भी ये होना चाहिए। सो हुण देखते हैं भी इनू हुण जिहड़ा सैनेट दे विच किन्ना टाइम लगदा ते इस गल दा किन्ना असर हुंदा। इहदे नाल नाल जिहड़ा हुण वीज़ा बुलेटिन उहदे बारे भी कुछ गल कर लईए। जिहड़ा मई दा वीज़ा बुलेटिन आ गया, इहदे विच जिहड़ियां हुण डेटां ने वो ज़्यादा मूव तां नहीं होईयां अप्रैल नालों, पर तुहानूं मैं दसदा भी जिहड़ी F4 कैटेगरी हैगी भरा भैन दी US सिटीजन दी, ये हुण चल रहा 15 अप्रैल 2005। F3 कैटेगरी जिहड़ी मैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ US सिटीजन आ उत्थे चल रहा जी 22 अगस्त 2008। F2B कैटेगरी चल रहा 15 अगस्त 2015। जिहड़ी F2A कैटेगरी है हैगी ग्रीन कार्ड होल्डर जिहड़े बच्चे ने ते हसबैंड वाइफ 21 साल तो घट बच्चे, ये करंट आ। तो F1 कैटेगरी चल रहा जी 22 अक्टूबर 2014। सो पिछले महीने के मुताबिक ये कैटेगरियां हफ्ता 10-10 दिन ही मूव हुई ने। वो पता ही है कि उत्थे जिहड़ी कंडीशन हैगी हुण जिहड़ी अमेरिकन अंबैसी मुंबई वाली आ उत्थे सारियां इंटरव्यूज़ कैंसल हो गई अप्रैल ते मई दियां, उहदे करके डिले आ, पर कैटेगरियां मूव जरूर होईयां। ये पिछला सारा साल ये कैटेगरियां बंद रही ने, पर ये हुण फरवरी तो मूव होने शुरू होईयां, पर सानू उम्मीद सी भी ज़्यादा मूव होणगियां, पर 10 या 15 दिन ही मूव होईयां ने। गांह नूं देखांगे भी किन्नियां मूव हुंदियां। लेकिन इन्हां कैटेगरियां दे विच जिहड़े हुण डॉकूमेंट्स मंगे जाते हैं, जिहड़े कि हुण NVC डॉकूमेंट्स मंग रही आ, वो इन्हां डेटां दे मंग रही है। F4 कैटेगरी दे विच 1 दिसंबर 2005, सो जिन्हां ने अक्टूबर नवंबर तक या सितंबर तक ईवन दिसंबर 5 तक भी जे पेपर अपलाई किए सी अपने भैन भरावां दे, उन्हां नूं हुण NVC कह रही है भी डॉकूमेंट जमा कराओ, सिविल डॉकूमेंट जिन्हां विच कि पासपोर्ट क्लीयरेंस हो गई, पुलिस क्लीयरेंस रिपोर्ट, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट हो गया, उन्हां दे जिहड़ियां हैगियां फोटोआं हो गईयां, बर्थ सर्टिफिकेट दीयां कापियां, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारा मंगना शुरू किया। F3 च मंग रहे हैं 22 जून 2009 तक। F2B च मंग रहे हैं 22 जून 2016 तक। F2A च मंग रहे हैं 1 अप्रैल 2021 तक। तो F1 कैटेगरी च मंग रहे हैं 1 अक्टूबर 2015 तक। सो इन्हां तक जिन्होंने अपलाई किया उन्होंने डॉकूमेंट्स मंग रहे हैं। तो इस करके हुण ये जिहड़ी हुण मौजूदा सूरत हाल आ, देखते हैं आने वाले दिनों में किवें मूव हुंदी आ। तो हुण सवाल हो गया जी तुहाडे समा हो गया तुहाडे सवालों के जवाब देण दा। तो इहदे च जिहड़ा इंपॉर्टेंट तुहाडे जिहड़े कुछ सवाल ने वो असीं लए ने, तो उन्हां दे जवाब जिहड़े आ वो मैं तुहानूं हुण देण जा रहा। ज़्यादा जिहड़े तुहाडे सवाल हैगे उस संबंधित F4 कैटेगरी नाल ने। एक सवाल पहले उन्होंने पूछा कि F4 कैटेगरी 2019 दे विच रिफ्यूज़ हो गया साडा वीज़ा 221G ला के, तो सारे डॉकूमेंट असीं ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 2 साल हो गए आ, तो इनू हुण इन्ना टाइम लग रहा। देखो इस तरह है भी जे वीज़ा रिफ्यूज़ किसी वजह करके होया, उन्होंने चीज़ां मंगियां तुसीं भेजतियां, उन्होंने टाइम तो लगता ही आ। तो ये हुण मैनूं डिटेल च नहीं पता भी उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों किया सी। तुसीं जां तां मैनूं ईमेल कर दो अपने सारे डॉकूमेंट jpsinghattorney@gmail ते, तुहानूं फिर मैं डिटेल च दस सकदा कि ये क्यों इन्ना टाइम लग रहा, तो रिफ्यूज़ क्यों होया, तो की ये हो सकता। तो जां मैनूं फोन कर लो 9179154142 ते मैं तुहानूं उहदे बारे फिर डिटेल जानकारी देवांगा। तो एक होर सवाल है जी, उन्होंने कहा सर जी साडा केस F4 कैटेगरी च मेरी मासी जी ने अपलाई किया सी मेरे मदर का अगस्त 2005 विच, ते मेरी उम्र वड्डी हो गई, तो चाइल्ड स्टेटस प्रोटैक्शन एक्ट दे विच मैं आ सकदा कि नहीं। देखो जे अगस्त 2005 किया होई तां हुण वारी करंट हैगी आ, उत्थे अगस्त ही चल रहा 2005 इस टाइम ते चाइल्ड स्टेटस प्रोटैक्शन एक्ट जिहड़ा 21 साल तो उपर बच्चों कवर करदा, पर उसकी कैलकुलेशन हुंदी है खास। जे तुसीं उस कैलकुलेशन दे विच आओगे तो फिर तुसीं कवर हो सकते हो।
तो ये ਹੁਣ देखना पएगा कि ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ कि नहीं ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ डिटेल jpsinghattorney@gmail ਤੇ, ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। एक होर है सवाल उन्होंने कहा जी कि F4 कैटेगरी मई 2006 अप्लाई किया सी, कितना टाइम लगूगा। अजे उत्थे 2005 चल रहा जी, तो आप दस के हटे हुणे ही, तो वो हुण टाइम लग रहा। तो हुण जे तुसीं उत्थे 2005 चलदा तो थोड़ा 6 का आ, अजे साल होर लग सकदा, पर तुहाडे जिहड़े डॉकूमेंट्स वगैरह NVC आ हो सकदा होर 4-5 महीने तक मंगने शुरू कर देवे। तो एक होर सवाल उन्होंने कहा जी कि मेरे रिश्तेदार नूं USA च फैमिली वीज़ा मिल सकता, मेरे फादर मदर दोनों की डैथ हो गई आ, 2 बच्चे मेरे। देखो गल ये आ भी विजिटर वीज़ा लैण का ये क्राइटेरिया नहीं हुंदा भी तुहाडे रिलेटिव ने अमरीका दे विच जां तुहानूं कोई फैमिली प्रॉब्लम हैगी आ, क्योंकि विजिटर वीज़ा तो इस करके मिलता कि जे तुसीं ये शो करो कि तुसीं उत्थों वापस आओगे मुड़ के। सो ये करके तुसीं ट्राई कर सकते हो विजिटर वीज़े की, पर कोई जरूरी नहीं कि मिले, क्योंकि विजिटर वीज़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, इन्ना सौखा नहीं मिलता। तो एक होर सवाल है जी, उन्होंने कहा कि 27 जनवरी 2020 ਨੂੰ NVC तो ईमेल आई सी कि इंटरव्यू की, तो उस तो बाद असीं फीसां दुबारा भरनियां पईयां जून 19 ਨੂੰ। उस तो बाद साडा फीसां बारे हुण 2 साल हो जाणगे तो अजे तक कुछ नहीं आया। देखो इस तरह है कि तुहानूं जे जनवरी 20 च ईमेल आई सी इंटरव्यू की, तो डेट फिक्स करांगे नहीं की, उसका कारण यह है कि पिछले साल इन्हां कैटेगरियां ते बैन लग गया, वो करके बंद हो गई, पर हुण खुल्लियां ने फरवरी तो। तुसीं फॉलो करो, दोबारा उन्होंने ईमेल करो, तुहानूं डेट आ सकती है। एक होर सवाल है जी, उन्होंने कहा कि सर मेरा हसबैंड 19 दे विच मैक्सीको तो डिपोर्ट हो गया सी, दोबारा जा सकदा। देखो जे एक बारी तुसीं अमरीका तो डिपोर्ट होंदे हो तो वो डेपोटेशन जी 10 साल की होंदी है, 5 साल की, वो फिर जी हैगी डेपोटेशन दोबारा रीइनस्टेट हो सकती है। सो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जे तुसीं डिपोर्ट होए हो तो सेम डेपोटेशन दोबारा, सो इस करके नहीं आना चाहिए। बल्कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती करूँगा भी इस तरीके नाल आना ही गलत आ, क्योंकि जो तुसीं बॉर्डर क्रॉस करके आने हो ये जिथे कि कानून की वायलेशन है, ये गलत तरीका आ। उहदे नाल नाल तुहानूं आप नूं भी खतरा है, क्योंकि जिहड़े बंदे लैके आउंदे आ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ, ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक होर सवाल है जी कि स्पाउस इंटरव्यू मुंबई होंदी है, किते होर भी होंदी नहीं। ये जिहड़ी फैमिली इमीग्रेशन दी इंटरव्यू ने सारियां मुंबई 'ਚ ही होंदियां ने। ये पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने कीता सी ते ये मुंबई 'ਚ ही होंदियां, होर किते नहीं होंदियां। सो इस कर खास करके नॉर्थ इंडिया के पंजाब के लोगों दियां, सो मुंबई जाना पैंदा। तो एक होर है जी कि उन्होंने कहा कि F3 कैटेगरी दे विच असीं अप्लाई कीता होया ते अमरीका दे विच रहना जरूरी आ। हाँ जी, मतलब रहना जरूरी है, क्योंकि इत्थों का डोमिसाइल होना चाहिए, बंदा आके जा सकता। जिन्हें भी अप्लाई किया आ वो जे हुण US सिटीजन है वो इंडिया जा सकते हैं, पर उत्थे पक्का नहीं रह सकते। उन्होंने अमरीका 'च रहना पएगा, शो करना पएगा भी इत्थे डोमिसाइल ने, सो विजिट कर सकते हैं, पर उन्होंने परमानेंट अमरीका 'च रहना पएगा। तो एक होर सवाल है जिन्होंने कहा जी मैंने 2019 दे विच मैनूं डिपोर्ट करता सी, उन्होंने 26 साल मैं अमरीका 'च रहा, तो मेरा कोई क्रिमिनल रैकड नहीं हैगा, तो मैं 2 ਨਾਂ यूज़ किए सीगे, तो मेरे बच्चे जिहड़े ने वो वड्डा बच्चा 18 साल का, एक 13 का, तो ये की हो सकता। देखो इस तरह है कि बच्चे 21 साल के होके तुहाडा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उत्ते फिर आए आ भी जे थोड़े दे बाहर लगी आ तो वेवर नहीं मिलना, क्योंकि जिहड़ा वेवर है 601 वो सिर्फ हसबैंड वाइफ के केसां 'च मिलदा, जां जे पेरेंट्स बच्चों लई करन, जे बच्चे माँ बाप लई करन, जिवें तुहाडे बच्चे 21 साल के होके वेवर नहीं मिलूगा। जे तुहाडे ते डेपुटेशन 10 साल की लगी आ वो तुहानूं फिर उन्नी देर बाहर रहना पऊगा, अनलैस कि तुहाडी वाइफ सिटीजन आ। जे तुहाडी वाइफ जिहड़ी सिटीजन आ वो तुहाडे लई अप्लाई कर सकदी, उह 'च वेवर मिल सकदा। तो F2B कैटेगरी बारे सवाल है जी कि इह एज लिमिट किन्नी है। देखो जिहड़ी एज लिमिट है वो तो 21 साल तो उपर ही आ, कि जिहड़े 21 साल तो उपर बच्चे वो आ सकते हैं। 21 साल तो उपर तो भावें 30 साल के हो जाण तां भी आ सकते, एको ही शर्त है कि अनमैरिड ना होण। सो उम्र का कोई नहीं गा, मतलब अनमैरिड होण एको ही शर्त है कि वो मैरिड ना होण, विआह ना कराउण। जे अनमैरिड रहिंदे आ तां उन्हां दी उम्र 21 तो उपर जिन्नी मर्जी हो जाए, भावें मतलब 35 साल हो जाए तां भी आ सकते हैं, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं हैगी। पर शर्त एको ही आ भी उन्हां दा विआह नहीं होया होना चाहिए, दे हैव टू बी अनमैरिड। जे वो अनमैरिड रहणगे तो 21 साल तो उपर भावें जिन्नी मर्जी उम्र हो जाए आ सकते हैं। तो एक होर उन्होंने हुण सवाल पुछया जी कि F1 स्टूडेंट के लिए कोई अपडेट है दसो। देखो स्टूडेंट वीजे लिए जी अपडेट हैगी आ वो यही आ कि शुरू हो गया, पर हुण क्योंकि उत्थे इंटरव्यूज़ वगैरह जिहड़ियां हैगियां वो कैंसल हो गई, वो करके
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ OPT ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬੈਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੈਨ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲਓ 9179154142। ਜੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਆਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ jpsinghattorney@gmail, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।